Hello students, I hope you are all good at your home. Today we are reading our chapter 3, A Rupee Goes a Long Way by Ruskin Bond. Ruskin Bond is very famous Indian writer who written many popular novels, short stories and poems for children. And most of his writing is influenced by his life in the hill station at the foothills of the Himalayas where he spent his childhood. What is the meaning of a rupee goes a long way? It means एक रुपए से बहुत सारे रास्ते होना या फिर एक रुपए से बहुत सारे रास्ते बने. This story is about a boy whose name is Ranji. And the title of the chapter is Rupee. So that means Ranji have a rupee. Okay, now let's read the story. Ranji had a 1 rupee coin, so he made his way to the Jamna sweet shop, tossed the coin on the counter and asked for a rupee's worth of jalebis. The shopkeeper looked at the coin carefully. Ranji had a 1 rupee coin. That's why he going to Jamna sweet shop for buying jalebis, and the shopkeeper looked the coin very carefully. मीन्स रंजी के पास 1 रुपया था, वो जमुना स्वीट शॉप पर गया और उसने उसके काउंटर पर सिक्का रखा और बोला कि कितने रुपए की जलेबी है. शॉपकीपर ने कॉइन को अच्छे से चेक किया. दैट कॉइन्स नो गुड, ही सेड. देन द शॉपकीपर रिप्लाइड टू रंजी दैट कॉइन हैज़ नो वैल्यू दिस टाइम बिकॉज द कॉइन वॉज टू ओल्ड. Ranji asked, "Are you sure? क्या आप श्योर हैं? These coins went out of use long ago," said the shopkeeper. शॉपकीपर ने बोला, ये कॉइन्स तो बहुत टाइम पहले बंद हो गए थे. It isn't old enough to be valuable and it isn't new enough to buy anything. Ranji shrugged, took the coin back and turned on the road. शॉपकीपर ने बोला कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब आप इससे कोई नई चीज़ नहीं खरीद सकते. रंजी अपने शोल्डर्स को झुका करके चुपचाप अपना कॉइन लेकर के वापस उसने रोड की तरफ को टर्न कर लिया. Soon Ranji was wandering through the bazaar when he heard a familiar voice behind him. Where are you going, Ranji? तभी वो बाज़ार की तरफ गया और उसको एक बहुत ही फैमिलियर वॉइस आई. Somebody calls him, "Where are you going, Ranji?" Then it was Mohinder Singh, जो रंजी को पुकार रहा था कि कहाँ जा रहे हो रंजी. वो मोहिंदर सिंह था, रंजी's friend, रंजी का फ्रेंड. In one hand Mohinder held a homemade fishing rod. एक हाथ में मोहिंदर फिशिंग रोड ले रहा था जो घर की बनी हुई थी. "I'm not going anywhere," said Ranji. "Where are you going?" Ranji told to Mohinder Singh, "I'm not going anywhere." मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? "I'm not going. I have been," Mohinder said. "I was fishing in the canal all morning." मैं भी कहीं नहीं जा रहा, बस यूँ ही मैं तो फिशिंग करके आया हूँ सुबह सुबह कैनाल में. कैनाल मीन्स नहर. ओके, मोहिंदर ने रंजी को रिप्लाई किया. नाउ वी विल टर्न ऑन नेक्स्ट पेज. रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रोड. "विल यू लैंड इट टू मी?" ही आस्क्ड. रंजी उसकी फिशिंग रोड को देख रहा था और रंजी ने बोला, क्या तुम इसे मुझे दोगे? "You will only lose it or break it," Mohinder said. "But I don't mind selling it to you, 2 rupees." Now Ranji's friend Mohinder said that you have no use for it. तुम्हें इसका कोई यूज़ नहीं है, तुम इसे बेकार कर दोगे, तोड़ दोगे, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इसे तुम्हें सेल कर दूँ 2 रुपीज़ में. "I have got 1 rupee," said Ranji, "but it is an old one. The sweet seller would not take it." रंजी ने रिप्लाई किया उसको कि मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है और ये भी ओल्ड है. स्वीट सेलर ने इसको लेने से मना कर दिया. "Please let me see it," said मोहिंदर. मोहिंदर ने बोला, मुझे देखने दो. He took the coin and looked it over.
I don't suppose it's worth much, but my uncle collects old coins. Give it to me and I will give you the road. मोहिंदर ने देखा कि वो कॉइन बहुत पुराना है. उसने कहा कि हाँ, इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है, बट मेरे अंकल ओल्ड कॉइन्स का कलेक्शन कर रहे हैं. ओके, तुम मुझे इसे दे दो, मैं तुम्हें रोड दे दूँगा. All right, said Ranji, happy to make the exchange. He took the fishing rod, waved goodbye to Mohinder and set off. रंजी ने बोला ठीक है, और उन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया. मीन्स रंजी ने कॉइन मोहिंदर को दे दिया, मोहिंदर ने फिशिंग रोड रंजी को दे दी. रंजी ने फिशिंग रोड ली और मोहिंदर को गुड बाय कह के चला गया. आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग. रंजी न्यू द ड्राइवर एंड वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम until he stopped. Will you take me to the river? Ranji asked. I am going fishing. कुछ ही टाइम बाद वहाँ से एक ट्रक आता है और रंजी उस ट्रक ड्राइवर को जानता है. रंजी अपना हाथ हिलाता है और बोलता है प्लीज़ स्टॉप, रुको, क्या आप मुझे नदी के पास छोड़ देंगे? रंजी ने पूछा मुझे फिशिंग के लिए जाना है. क्लाइंब अप इन द बैक, द ड्राइवर सेड. ट्रक ड्राइवर ने बोला कि पीछे ट्रक में चढ़ जाओ. Ranji climbed into the back of the open truck. Soon he was watching the road slide away from him. रंजी जब ओपन ट्रक में पीछे की तरफ बैठ गया तो उसने देखा कि मेरे साथ साथ ना रोड भी चल रही है. ऐसा होता है जब हम किसी व्हीकल में बैठ के जाते हैं तो जो हम रोड होती है वो हमें ऐसा लगता है कि रोड भी हमारे साथ साथ चल रही है, बिकॉज द रोड इज सेम इन एवरीवेयर. इन अ while the truck stopped near the river bed. Ranji got down, thanked the driver and began walking along the bank. कुछ ही देर में ट्रक रुका रिवर के किनारे और रंजी उतर गया और उसने ड्राइवर को थैंक यू बोला और वहाँ से वो नदी के किनारे चलने लगा. It was the dry season and the river was just a shallow, muddy stream. गर्मियों के दिन थे और जो नदी थी वो सूखी हुई थी, उसमें पानी नहीं था, कहीं भी बहुत ही कम पानी था. Ranji walked up and down without finding water deep enough for the smallest of fish. रंजी वहाँ गया, उसने देखा कि वहाँ पर थोड़ा भी पानी नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई फिश है. No wonder Mohinder let me have his rod, he muttered. वो बहुत ही अपने मन मटर्ड मीन्स होता है मन ही मन में बोला कि अच्छा इसीलिए मुझे मोहिंदर ने ये रोड वापस कर दी, ये रोड मुझे इसीलिए दी है उसने. एंड विद अ श्रग ही टर्न बैक, और वो वापस आया. श्रग मीन्स होता है निराश होकर. इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाज़ार. रंजी थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाय. अब वो वापस आया, बहुत गर्मी थी बाज़ार में और रंजी को वापस मार्केट में आके किस चीज़ की याद आई? जलेबीज़ की, जो कि वो बाय नहीं कर पाया था, ख़रीद नहीं पाया था. ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउस व्हेन ही सा ए बॉय प्लेइंग अ फ्लूट. जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, वहाँ कुछ घर थे, मार्केट के पास ही घर थे, तो उसने एक लड़के को देखा हु वाज प्लेइंग अ फ्लूट. फ्लूट मीन्स बांसुरी. इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड. इतनी दोपहर में वो जो फ्लूट बजा रहा था उसकी बहुत अच्छी साउंड आ रही थी, बहुत ही प्यारी सी. रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग. रंजी वहाँ पर रुका. द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग. तो लड़के ने फ्लूट बजाना बंद कर दिया. द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रोड. रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट. अब रंजी की आंखें तो उसकी फ्लूट पर थी और जो फ्लूट प्लेयर था उसकी आंखें रंजी की फिशिंग रोड पर थी. बीन फिशिंग? आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर. फ्लूट प्लेयर ने पूछा क्या तुम फिशिंग करके आए हो? यस सेड रंजी. रंजी ने बोला हाँ. नेक्स्ट पेज. डिड यू कैच एनीथिंग? क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? नो सेड रंजी. आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग. रंजी ने बोला कि नहीं, मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका. देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस. देन रंजी सेड इट्स अ गुड रॉड. बहुत देर वो दोनों शांत रहे और फिर रंजी बोला कि बहुत अच्छी रोड है. दिस इज़ अ गुड फ्लूट सेड द बॉय. और जो फ्लूट प्लेयर है उसने रिप्लाई किया कि ये मेरे पास जो है ये भी बहुत अच्छी फ्लूट है. रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट. ही पुट इट टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड. रंजी ने वो फ्लूट ली और उसको अच्छे से चेक किया और अपने लिप से उसको बजाने लगा. देयर वॉज अ श्रिल स्क्वीकी नॉइज एंड अ स्टार्टल्ड मैजीपाई flew out of a mango tree.
एकदम बहुत ही सरप्राइजली बहुत ही अच्छी आवाज़ आई। जैसे मैगपाई होती है बेटा, एक बर्ड, ब्लैक और वाइट बर्ड होती है जिसकी लंबी पूंछ होती है और उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। एकदम मैंगो ट्री से उसकी आवाज़ निकल कर आई। नॉट बैड सेड रंजी। रंजी ने बोला नहीं, बुरी तो नहीं है, ये अच्छी है। द बॉय हैड टेकन द रोड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग इट ओवर। नॉट बैड ही सेड। अब लड़के ने रंजी से फिशिंग रोड ली और बोला हाँ हाँ, ये भी बुरी नहीं है। रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर। अब रंजी ने थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, ना वो हेजिटेट हुआ। लेट्स एक्सचेंज। रंजी ने बोला फ्लूट प्लेयर से कि चलो एक्सचेंज करते हैं, चलो हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। अ ट्रेड वॉज मेड। अब क्या हुआ, वहाँ पर ट्रेड हुआ। ट्रेड मीन्स बिजनेस, एक चीज़ों का लेना देना। द बॉय took the fishing rod and went on his way. Ranji began playing the flute. The notes sounded lovely to him, but they startled people who were passing on the road. लड़का जो फ्लूट प्लेयर था वो फिशिंग रोड लेकर चला गया और रंजी फ्लूट बजाने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि वहाँ पे जो पीपल थे जो रोड पे पास हो रहे थे वो उसे देख रहे थे। When he came to the clock tower where the bazaar began, he sat on the low wall and blew vigorously on the flute. वो मार्केट में क्लॉक टावर के पास आकर के जो छोटी सी वाल वहाँ पर थी वहाँ पर बैठ गया और फुल एनर्जी के साथ फ्लूट को बजाने लगा। I can play better than that, said a boy who was carrying several empty milk cans. एक लड़का बोला मैं इसे और भी अच्छा बजा सकता हूँ। वो लड़का कौन था, जिसके पास एम्प्टी मिल्क कैंस थे, मीन्स वो देखने में मिल्कमैन लग रहा था। As you saw in picture, let's see, Ranji said. Ranji ने बोला चलो देखते हैं। Now next page. The boy took the flute and played a lovely little tune. लड़के ने फ्लूट ली और बहुत अच्छी ट्यून बजाई। You can have it to for a rupee, said Ranji. रंजी ने बोला इसके लिए तुम्हें मुझे रुपए देने होंगे। I don't have any money to spare, said the boy. बॉय ने बोला कि मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, एक्स्ट्रा मनी मेरे पास है ही नहीं। But you can have this necklace. He showed Ranji a pretty necklace of brightly colored stones. लेकिन तुम ये नेकलेस रख सकते हो। उसने रंजी को दिखाया, बहुत ही सुंदर नेकलेस था, बहुत ही शाइनी और बहुत कलरफुल स्टोन्स का था वो। The stones are very precious, said the boy. They were found in the mountains near Tibet. लड़के ने बोला बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, बहुत महंगे स्टोन है और ये तिब्बत के पास जो माउंटेन्स है वहाँ पर मिलते हैं। रंजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू। रंजी को स्टोन्स की थोड़ी सी वैल्यू पता थी, बट दे वर प्रिटी, लेकिन बहुत ही सुंदर था नेकलेस। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट। दे मेड द एक्सचेंज एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट। तो रंजी अब फ्लूट बजाते बजाते भी थक गया था और अब फिर से उसने एक्सचेंज कर लिया बॉय से। Ranji was about to thrust the necklace into his pocket when he noticed a girl staring at him. Her name was Koki and she lived close to his house. अब एक्सचेंज कर लिया, बॉय को क्या दे दिया उसने, फ्लूट दे दी और उससे नेकलेस ले लिया। रंजी जैसे ही नेकलेस को अपने पॉकेट में रख रहा था तो रंजी ने देखा, नोटिस किया कि एक लड़की उसको देख रही है। उसका नाम था कोकी और कोकी उसके घर के पास रहती थी। हेलो कोकी, रंजी से ही सेड। उसने बोला हेलो कोकी। व्हाट्स दैट यू हैव गॉट रंजी। कोकी ने बोला तुम्हारे पास क्या है रंजी। अ नेकलेस, वुड यू लाइक टू हैव इट। मेरे पास एक नेकलेस है, क्या तुम्हें वो चाहिए। कोकी बोली ओ थैंक यू, क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर, और खुशी से ताली बजाने लगी। 1 रुपीज़ सेड रंजी। रंजी ने बोला 1 रुपीज़ का है ये। Oh, said Koki, she made a face, but Ranji was looking the other way and humming. कोकी बोली ओह, और उसने एक फेस सा बनाया और रंजी को देखने लगी और मतलब मन ही मन में गुनगुनाने लगी। कोकी kept staring at the necklace. कोकी नेकलेस को ही देख रही थी। Slowly she opened a little purse, took out a shining new rupee and held it out to Ranji. फिर उसने अपना छोटा सा पर्स निकाला और उसमें से एक चमचमाता न्यू कॉइन निकाल के रंजी को दे दिया। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस। रंजी ने नेकलेस कोकी को दे दिया। देन ही रैन अक्रॉस टू द जमुना स्वीट शॉप एंड टोस्ड द कॉइन ऑन द काउंटर। और तभी वो जमुना स्वीट शॉप पे पहुंचा सॉरी
और उसने वहाँ पर काउंटर पे कॉइन रखा, जलेबीज फॉर अ रुपी ही सेड, और उसने बोला जलेबी दे दो मुझे इन पैसों की। द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली एंड सेड ऑलवेज एट योर सर्विस सर। एंड नाउ वेन एवर स्वीट सेलर got a new rupees, got a new coin, then he welcomed to his customer and he said I am always in your service sir। स्वीट सेलर बहुत खुश हुआ, उसने कॉइन देखा और उसने बोला कि हाँ सर मैं हमेशा आपकी सर्विस में हूँ। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबीज एंड हैंडेड दैम ओवर, और उसने एक पेपर बैग में जलेबी को रखा गरम गरम और उसके हाथों में दे दी। When Ranji reached the clock tower, he found Koki waiting। जब रंजी क्लॉक टावर के पास पहुंचा उसने देखा कोकी उसका वेट कर रही है। Oh, I'm so hungry, she said, giving him a shy smile। कहती है कि मैं बहुत ही भूखी हूँ, और उसे बहुत शर्मीली मुस्कुराहट देती है। So they sat side by side on the low wall and Koki helped Ranji finish the jalebis। तो वो दोनों उस छोटी सी दीवार पर बैठकर साथ में, और कोकी और रंजी ने साथ में जलेबीज फिनिश की। This story is written by Ruskin Bond। I hope you understand this story. So thank you all.